السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 73 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. التمش خانزادہ اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے ڈیرے کے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوا. زاویار خانزادہ ڈیرے کے بڑے سے لان میں آگ دہکائے کرسی پہ بیٹھا آگ سیک رہا تھا. رومیو اور ٹائٹین اس کے قریب بیٹھے ہوئے اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے. وہ کبھی اس کے ہاتھ چاٹتے کبھی اس کے بوٹ چاٹنے لگتے. وہ بہت دنوں بعد ڈیرے پر آیا تھا. التمش خانزادہ اپنے بھاری قدموں سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا. زاویار ایک ہاتھ سے رومیو اور ٹائٹین کو ان کی گردنوں سے نرمی سے سہلا رہا تھا. التمش کی طرف نہیں دیکھا تھا. وہ التمش خانزادہ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر غرور انا اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹتا. اس کی سرداریت میں رچ بس گئی تھی. وہ التمش خانزادہ کے لیے جان دے سکتا تھا، مگر اپنی بہن اس کے پاس گوارا نہ تھی. وہ غصے میں اسی طرح کے فیصلے کرتا آیا تھا، ایسے ہی سب کو سزائیں دیتا تھا. مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے زمر خان کو نہیں خود کو سزا دے بیٹھا ہو. وہ اس کی بہن تھی، سردار زاویار خانزادہ کی بہن، آلیان خان کی بہن. وہ کیسے کسی گارڈ کی نکاح میں ہو سکتی تھی؟ وہ مغرور تھا. وہ مغرور سردار زاویار خانزادہ ہی رہنا چاہتا تھا. السلام علیکم خان. التمش خانزادہ سلام کرتے رکا تھا. زاویار خانزادہ کے چہرے پر عجب سی سنجیدگی کے ساتھ خط کی چھائی تھی. رومیو ٹائٹین التمش خانزادہ کی طرف بڑھے تھے. زاویار خانزادہ ان کی گردن میں بندھے پٹھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت مضبوط کر گیا تھا. رومیو ٹائٹین اپنے مالک زاویار خانزادہ کی گرفت پر ہی اس کا حکم سمجھ چکے تھے. وہ اسی لمحے زاویار کے قدموں میں جھکی اس کے بوٹ مزید شدت سے چاٹتے، اسے اپنی وفاداری کا جیسے یقین دلانے لگے تھے. التمش خانزادہ بغور زاویار کے تاثرات اور رومیو ٹائٹین کے پٹوں پر اس کی گرفت دیکھتے اس کے سامنے ایک معتب گارڈ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، مگر چہرہ سرخ سنجیدہ ہوا تھا. وہ زاویار خانزادہ کی فطرت بخوبی سمجھتا تھا، مگر پہلی بار وہ اپنے رویے سے اسے جیسے جھوٹا دکھا رہا تھا، یا پھر وہ خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا. شاید رشتہ بدل چکا تھا. پھر زمر خان کے بین ماتمی سسکیاں سے بہت کچھ محسوس کروا رہے تھے. التمش خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں اس عالیشان ڈیرے پر گاڑی. واقعی میں عزت صرف امیروں کی تھی. پہلی بار اسے یہ ڈیرا عالیشان لگا تھا. آج سے پہلے یہ ڈیرا اس کے لیے پتھروں سے بنا وہ ڈیرا تھا جہاں وہ زاویار اپنا بیشتر وقت گزارتے تھے. یہ ڈیرا اس لیے قیمتی لگتا تھا، یہاں وہ اور زاویار خانزادہ گارڈ اور مالک نہیں ہوتے تھے. وہ ہنستے تھے، کہکے لگاتے تھے، مگر آج یہ ڈیرا عالیشان پتھروں اور شیشوں سے اس قدر قیمتی لگ رہا تھا. جی خان، آپ نے بلایا تھا؟ وہ صرف چہرے کے ساتھ سپات لہجے میں بولا تھا. نظر زاویار خانزادہ پر نہیں، کسی غیر مرئی نقطے پر تھی. زاویار خانزادہ مغرور تھا تو وہ خوددار تھا. غرور اور خودداری کا ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے. غرور ہمیشہ سر جھکوانا چاہتا ہے، خودداری کبھی گھٹنے نہیں ٹیکتی. جہاں غرور ہو وہاں رشتہ حکم بنتا ہے، محبت نہیں. یہی وہ دراڑ ہے جہاں الگ الگ فطرت کے انسان چاہنے کے باوجود ساتھ نہیں رہ پاتے. بیٹھو، زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بولا. جی خان. وہ جواباً اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا. ڈیرے پر اب اپنی گمبھیر خاموشی چھائی تھی. دونوں ایک دوسرے کے سرد سرخ نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھے. التمش، مجھے لگتا ہے زمر خان اور تمہارے نکاح کا فیصلہ جلد بازی میں ہوا. وہ بارود سنجیدہ لہجہ لیے مخاطب ہوا تھا. ہو سکتا ہے، مگر نکاح جلد بازی میں ہو یا سوچ سمجھ کر، مگر نکاح کی شک ایک رہتی ہے. اس نکاح میں بندھے دو وجود ایک دوسرے کی سپردگی میں چلے آتے ہیں. دونوں کا ایک دوسرے پر بڑا گہرا اور مضبوط حق ہوتا ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں دیتی. وہ تھوڑا سا آگے کو جھکتے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوا تھا. وہ غریب تھا مگر نڈر تھا. اس علاقے میں زاویار خانزادہ کی جتنی دہشت تھی اتنی اس کی تھی. وہ سامنے بیٹھے انسان کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ ہنستے ہنستے بہا سکتا تھا، مگر زمر خان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. جو مقابل چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ اس کے سینے میں گولیاں اتار دے. التمش خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہو چکی تھی.
भवों के बीच में शिकानान ठहरी थी। वो क्या कहना चाहता था वो समझ चुका था। वो बमुश्किल खुद पर काबू पा गया था। मगर मैं चाहता हूँ सिमर को तो हवेली वापस ले आओ। इसकी रुखसती का बाद में सोचूंगा। सावियार खानजादा भी आगे को होते अपने मजबूत हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए। अल्तमिश खानजादा की आंखों में अपने सर डांखे गाड़े हुक्मिया लहजे में कुर्राया। अल्तमिश खानजादा सावियार खानजादा के हुक्मिया लहजे पर मध्यम लहजे में हंसा था। फिर सीधे होते कुर्सी से टेक लगाए अपनी आंखों पर हाथ रखे हंसता ही चला गया था। जावियार खानजादा टेबल पर रखी अपनी पिस्टल पर मजबूती से अपना हाथ जमा गया था। अल्तमिश खानजादा सीधे होते अब खामोशी से जावियार खानजादा की आंखों में आंखें गाड़ गया था। जान मांगेंगे खान दूंगा। आप कहेंगे अल्तमिश दूसरा सांस न लो, वहीं अपनी सांस रोक दूंगा। अभी इसी वक्त इस पिस्टल से मेरे सीने में गोलियां उतार दें उफ नहीं करूंगा। वह आगे को होते जावियार खानजादा के हाथ में जकड़ी पिस्टल को आगे से पकड़े इसकी नोक अपने सीने पर रख गया था। मार डाले खान, 6 की 6 गोलियां उतार दे मेरे सीने में, खुदा कसम इतना ही वफादार रहूंगा आपका। वो जावियार खानजादा के सर निगाहों में देखते बोल रहा था। जावियार खानजादा के पूरे वजूद की रगें जाहिर हो रही थी। वो इसे शररवार निगाहों से घूर रहा था। जहाँ कहेंगे जिसे कहेंगे इसके सीने में अपनी पिस्टल से गोलियां मार दूंगा, चाहे वो बेगुनाह ही क्यों ना हो। वो अपनी जेब में हाथ डालते पिस्टल निकालते टेबल पर रख गया था। मगर सिमर खान अब मेरी औरत है, मेरी बीवी। एक खानजादा की बीवी जब तक मेरी सांसें हैं वो मेरे निकाह में रहेगी। इस पर अब हवा की नमी भी गवारा नहीं। वो एक एक लफ्ज बातें बोलते जावियार को बहुत कुछ बावर करवा गया था। जावियार खानजादा जबड़े भींचते सीधा हुआ। एकदम इसकी आंखें लाल अंगारा हुई थी। टेबल पर अल्तमिश खानजादा की पिस्टल के साथ ये स्याह स्ट्रिप वाला नाजुक सा पर्दा भी पड़ा था। जावियार खानजादा की आंखों में खून उतरा था। अल्तमिश खानजादा की नजर भी इस पर पड़ चुकी थी। अल्तमिश खानजादा बुरी तरह चटपटाया था। रंगत ने आग पकड़ी थी। वो इसी लम्हे से उठाते अपनी जैकेट की जेब में डाल गया था। जमर खान को हवेली छोड़ने वाली बात पर वो अपने हवास खो बैठा था। इसे बिल्कुल खबर नहीं हुई थी वो पिस्टल के साथ क्या निकाल चुका है। अल्तमिश खानजादा दांत पर दांत जमाए जैसा खुद पर काबू पा रहा था। दोनों अपनी सिर्फ निगाहें जमीन पर गाड़े हुए थे। ये सिचुएशन बेहद इंसल्टिंग थी। इतनी कि दोनों के खून रगों में भड़क रहे थे। चलता हूँ खान, अल्तमिश खानजादा को मुश्किल बोलते वहां से वॉकआउट कर गया था। वो मजीद वहां ठहरता जमीन में गड़ जाता। अल्तमिश जिमर से अपना हक ले चुका है। जावियार खानजादा के दिमाग की भड़कती रगें इसी बात में उलझ कर रह गई थी, यानी वो जिमर खान से जबरदस्ती कर चुका है। जिमर खान खुद को कभी अल्तमिश को नहीं सौंप सकती थी। वो ने कहा नहीं, जिमर खान के लिए इसकी मौत थी। वो इतनी जल्दी अल्तमिश खानजादा का हक खुद पर नहीं मान सकती थी, ना कबूल कर सकती थी। जावियार खानजादा की सांसों में आग दहकी थी। मर्द जब जबरदस्ती हक लेता तो कैसे लेता है। इसे आयश के साथ अपनी पहली रात याद आई थी। जो लड़की इस तरह किसी मर्द के साथ तन तनहा किसी फ्लैट पर पाई जाए, इसका मकाम इसके शौहर के नज़दीक क्या हो सकता है। अल्तमिश खानजादा तो इसे निकाह में लेने के बाद दरिंदा बन गया होगा। जावियार का पूरा वजूद जैसे मिर्चों से दहक उठा था। जिमर खान इसकी बहन थी, इसी सलूक के मुस्तहिक ना थी। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिमर खान को किसी ऐसे मर्द को सौंपना चाहिए था जो इसके माजी से वाकिफ ना होता। उफ! जावियार खानजादा अपने फैसले पर पछताते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े कुर्सी की सतह पर सर रख गया था। दूसरे लम्हे वो सामने रखी टेबल को अपने भारी बूथ वाले पांव से दूर धकेल गया था। टेबल जलती आग की नजर हुई थी। टाइटान टोम्यूस जावियार के गुस्से से सहम से गए थे। वो ऊंचा ऊंचा भौंकना शुरू कर हो चुके थे। यू गो बैक टू योर हाइडआउट्स रोमियो। वो टाइटैन रोमियो को देखते दहाड़ा था। जलती आग की नजर हुई थी। टाइटैन रोमियो जावियार के गुस्से से सहम गए थे। ऊंचा ऊंचा भौंकना शुरू हो चुके थे। यू गो बैक टू योर हाइडआउट्स। वो टाइटैन रोमियो को देखते दहाड़ा था। टाइटैन रोमियो इसकी गर्ज पर भागते हुए अपने ठिकानों की तरफ बढ़ गए थे। अल्तमिश खानजादा की गाड़ी कलाम की सड़कों पर फराटे भर रही थी। वो गाड़ी के शीशे खोले हुए था। बर्फीली हवाओं से इसकी रंगत सिर्फ कंधार हो रही थी। जावियार खानजादा से अपनी बहन वापस चाहता था। वो दांत पर दांत जमाए अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था। सिमर खान इसकी तरफ इसकी बीवी ना थी, इसका इश्क थी। इसे जावियार खानजादा के मुकाबले आना पड़ता तो वो आता, मगर जिमर खान को कभी नहीं छोड़ सकता था। एकदम बर्फीली हवाओं की चुभन बढ़ी थी। ऐसा लग रहा था हवा में रेत सी चुभन हो जो इसके नगोश में समा रही हो। वो अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगा। जिमर खान ने थूक की किलाहट भी जैसे अब महसूस होने लगी थी। इसके मातमी बैन, इसकी सिसकियां, इसके हत्ता कामीज लफ्जों पर अल्तमिश खानजादा को अपनी सांसें जलती महसूस हुई थी।
وہ اپنی گاڑی اونچے نیچے پہاڑ کی طرف جانے والے راستے پر روکتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ وہ اب بھاگتے ہوئے اپنے مضبوط قدموں سے اونچے پتھریلے راستے عبور کرنے لگا۔ اس کا توانا جسم، اس کے مضبوط قدم یہ راستے چٹکیوں میں عبور کرنے لگے۔ وہ پہاڑ کے اونچے ٹیلے پر کھڑا ان برفیلی بہتی ہواؤں کی چبھن اپنے وجود میں اتارنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، براؤن بال اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے، زمر خان کی بہتی ہواؤں کی طرح اس کی روح میں رہتی تھی۔ وہ اتنی شدت سے عشق کرتا تھا کہ وہ خون کی طرح اس کے شریانوں میں دوڑتی تھی۔ وہ کمرہ، وہ چار پائی گرم بستر تو اپنی قسمت پر نازاں ہوگا جہاں اس نے رات گزاری، مگر وہ خود کتنا نازاں تھا۔ وہ کیسے کسی کو بتاتا؟ اس کی غریبی اسے خود پر نازاں بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ سچ میں اتنا غریب تھا یا اس کے پاس اس کے باپ کا نام نہ تھا؟ وہ کرب زدہ سوچتے سرد سرخ چہرے کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ کر گیا تھا، جس عشق کو پانے کے لیے وہ دن رات تڑپتا تھا، جس کو پانے کے لیے اس کے ذرے ذرے نے خدا سے دعا کی تھی۔ اسے کیسے خود سے دور جانے دے سکتا تھا؟ وہ سرد برفیلی ہواؤں کی چبھن اپنے وجود میں اتارتے اسے پہاڑ کے نیچے کی طرف اترنے لگا تھا۔ اس کی چڑھائی کو چڑھنا آسان نہ تھا، مگر اتنا بے حد آسان تھا اسے یہ کٹھن راستے بہت سمجھ آ چکے تھے۔ زمر خان وہ اونچا پہاڑ تھی جس تک اس سے ابھی پہنچنا تھا۔ یہ کٹھن چڑھائیاں چڑھنا تھی۔ ایک بار وہ یہ کٹھن چڑھائیاں چڑھ جاتا، واپسی کا سفر بہت آسان ہو جاتا اس کے لیے۔ عاشق کبھی اپنی محبوبہ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ عاشق تھا، اس کی ذمر اس کے لیے اس کی ذمر بیوی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دل پر پتھر رکھتے ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ التمش خانزادہ کی گاڑی اس کے چھوٹے سے گھر کے سامنے آ رکی۔ وہ تھکے تھکے شکستہ قدموں سے باہر آتے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ عباسی اناج کے برآمدے میں 2 رضائیاں لیے اندر دبکا ہوا تھا۔ گل مکئی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ناراض ضدی وجود رضائی میں دبکا ابھی بھی ماتمی سسکیاں بھر رہا تھا۔ یہ سسکیاں نہیں تھی، یہ التمش خانزادہ کے وجود پر وہ گھاؤ تھے جو اسے دیتی جا رہی تھی، اور اس کی طرف بڑھتے رضائی اس کے وجود سے اتار گیا تھا۔ زمر خان اسے دیکھتے خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی سرمئی آنکھیں پھیلا گئی۔ وہ اس کے غلیظ لم سے ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچ پر زخمی سا ہنسا تھا۔ دونوں بہن بھائی ظالم ترین تھے، اتنے ظالم تھے کہ انہیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ ظلم میں فرعونیت کو بھی مات دیتے تھے۔ اٹھیے زمر بی بی، میں آپ کو آپ کی حویلی چھوڑ آؤں۔ لفظ نہیں، خنجر تھے جسے ادا کرتے اسے اپنی زبان کٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بے یقین ہوتے چارپائی سے کھڑی ہو چکی تھی۔ چلیے آپ کو آپ کی عالیشان حویلی چھوڑا، میرا یہ جھونپڑا آپ کے لائق نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ مقابل کی سرمئی آنکھوں کی خوشی اس کی ہار تھی۔ لالا بابا نے کہا یہ؟ زمر خان ڈولتے ہوئے اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ہاں، میں ٹھہرا ایک 2 ٹکے کا گارڈ، آپ کے لالا بھی مجھے یہی مقام دیتے ہیں۔ حکم ماننا ہی تھا۔ وہ استزائیہ خود پر ہنسا تھا۔ زمر خان اسے بے یقینی سے دیکھتے اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ اسے اس جھونپڑے سے رہائی ملنے والی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ التمش خانزادہ نے آنکھیں بڑھتے صوفے سے اس کی چادر اٹھائے، اسے تھمائی۔ وہ اس سے لیتے خود پر اوڑھتے دروازے کی طرف بڑھتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ زخمی سا مسکراتے اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے باہر نکل آیا۔ وہ اس کے باہر آنے سے پہلے اس کا گیٹ تک عبور کر چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ چادر سر پر اوڑھے تیز تیز قدموں سے اس کے گھر کے سامنے والی سڑک جو ڈھلوان کی طرح دکھتی تھی، اور اندھیری رات میں اس کی سڑک پر بھاگ رہے تھے۔ اسے پتا ہی نہ تھا یہ راستہ اس کی حویلی کی طرف نہ جاتا۔ اسے کسی راستے کا نہ پتا تھا، مگر قید سے رہائی ملی تھی۔ وہ جیسے اپنے ہوش گوا بیٹھی تھی۔ التمش خانزادہ اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے سرسرک نگاہوں سے دیکھے گیا۔ زمر بی بی، ایک دم وہ دہاڑا تھا۔ اس کی نازک جان اس کے دہاڑ پر کانپی تھی۔ دوسرے لمحے وہ مزید تیزی سے بھاگنے لگی تھی۔ اسے یہاں سے ہر حال جانا تھا۔ یار بات دے دے کوئی جان بھی، اگر دل پر نہ ہو کوئی اثر۔ وہ اپنی جیکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی چادر سر سے سرکتی جا رہی تھی۔ ایک دم اس کی دل خراش چیخ سنائی دی تھی۔ وہ سڑک کی ڈھلوان چڑھتے اسے نیچے کی طرف اترتے ہوئے گر چکی تھی۔ نیچے خاردار جھاڑیاں اور کھیت تھا۔ وہ گہرا سانس پھڑتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اسی ڈھلوان پر چڑھنے کی چادر سے سر سے سرکتی جا رہی تھی۔ ایک دم اس کی دل خراش چیخ سنائی دی تھی۔ وہ سڑک کی ڈھلوان چڑھتے اسے نیچے کی طرف اترتے ہوئے گر چکی تھی۔ نیچے خاردار جھاڑیاں اور کھیت تھا۔ وہ گہرا سانس پھڑتے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اسی ڈھلوان پر چڑھنے لگا۔ وہ خاردار جھاڑیوں سے بھرے کھیت میں گھٹنوں کے بل گری اونچا اونچا رو رہی تھی۔ کوہنیاں گھٹنے چھل چکے تھے۔ وہ اسی لمحے ایک ہی جسم میں ڈھلوان سے نیچے کود گیا تھا۔
जमर खान इसे एक देखते ही खौफ से पीछे को खिसकी थी। बस संजीदगी से इसकी तरफ बढ़ने लगा था। यकदम वो रुका था। जमर खान के पीछे बड़ा सा सांप था। अल्तमिश की सांसें रुकी थी। अगर वो जमर को होशियार करता वो मजीद काबू से बाहर हो जाती। वो धीरे धीरे कदम उठाते इसकी तरफ बढ़ा था। जमर पीछे की तरफ खिसकती जा रही थी। वो एक ही जिस्म में जमर खान पर जंप करते इसे अपने चौड़े वजूद के नीचे ढांप गया था। सांप को वो इसकी गर्दन से जकड़ गया था। मैंने खेतों पर पलकर जवान हुआ था। कितने ही ऐसे सांप मारे थे। वो इस सांप को दूसरी तरफ दूर धकेल गया था। सांप तेजी से दूसरी तरफ भाग गया था। वो जमर खान की कमर में हाथ डालते इसे अपने ऊपर कर गया था। वो सांप देख चुकी थी। अब खौफजदा निगाहों से इसे देख रही थी। कब समझेंगी आप? आपको जब भी तकलीफ पहुंचेगी वो तकलीफ पहुंचाने वाला मैं नहीं होगा, आप खुद होंगी या कोई दूसरा। आपका ये 2 टके का गार्ड कभी नहीं होगा। वो संजीदगी से बोलता उसके गुलाब गालों पर नरमी से उंगलियां फेर रहा था। वो बुरी तरह डर गई थी। इसे खौफजदा निगाहों से देखे जा रही थी। कुर्बान जाऊं आपकी बेपनाह खूबसूरती पर जमर बीबी, उसकी सहमी आंखों से देखते गंभीर आवाज में बोला था। खुदा ने मुझे क्या दिया इसे खुद भी नहीं पता। वो इसे अपनी बात पर मध्यम सा हंसा था। खुदा तो सब जानता है, मुझे ही अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा। मेरा इश्क सच्चा था या फिर वो मुझसे मोहब्बत ज्यादा करता है। सारी महरूमी आपकी सूरत में पूरी कर दें। वो गंभीर लहजे में बोलते इसके चेहरे को नरमी से दोनों हाथों में जकड़े हुए था। बेशक आपकी कुर्बत ना मिले, बेशक आपका लम्स ना मिले, बेशक आपके वजूद से मेरा कमरा ना महके, आप मेरी रहें, सिर्फ मेरी, और क्या चाहिए मुझे। वो भारी आवाज में बोल रहा था। जमर खान इसके सीने पर लेटी इर्द गिर्द झाड़ियों को कपकपाते देख रही थी। एक एक बात याद रखिएगा जमर बीबी, मैं ताउम्र आपके सामने सर झुका कर रहूंगा। आपके लिए सब कुछ करूंगा। आपके आराम के लिए सब कुछ करूंगा। पहाड़ तोड़ने पड़े वो भी तोड़ूंगा। दोबारा आपको इस झोंपड़े में नहीं लाऊंगा। मगर मेरे गरूर मेरी इज्जत को नीचा दिखाया, खुद पर किसी की निगाह भी पड़ने दी, इस झोंपड़े को हमेशा के लिए आपका मुकद्दर बना दूंगा। वह इसकी वो अब इसके बाल मुट्ठी में जकड़े खुर्रा उठा था। जिमर खान मजीद खौफजदा हुई थी। झाड़ियों में से हशरात की आवाजें आ रही थी। अजीब सी सनसनाहट थी। बहता दरिया जैसे समातों को चीर रहा था। बर्फीली हवाएं बदन चीर रही थी। ऊपर से वो गुर्रा रहा था। सिमर बीबी कुछ भी ऐसा वैसा किया, खुद पर हवेली के किसी मुलाजिम की निगाह भी पड़ने दी तो आपकी गोरी चमड़ी दाग दूंगा। उसके बालों को दबोचे खून नशान दरिंदे की मानंद गुर्रा उठा था। सिमर खान इसे ऐसे देखते इसी लम्हे इस बात में सही ला गई थी। उसके चेहरे पर खौफ देखते इसे नरमी से अपने सीने से उठाए खड़ा कर गया था। वो कांपते हुए खड़ी थी। अल्तमिश खानजादा ने इसका जूता तलाश किया। एक पाँव में जूता नहीं था। अल्तमिश खानजादा ने जूता तलाशते पंजों के बल बैठते इसका नर्म मुलायम पाँव अपने घुटने पर रखते इसका तलवा हाथ से साफ किया था जिस पर कीचड़ लगा था। वो इसके पाँव में जूता पहनाते खड़ा हुआ था। इसके सर पर चादर उड़ाते इसे गोद में उठा गया था। जिमर खान इसकी स्याह चकित मुठियों में जकड़ गई थी। वो इसे बगौर देखते इस खेत से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था। वो इसे खुद में उठाए वो मुश्किल रास्ता चढ़ने लगा था। वो इसे लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा खोलते इसे नरमी से सीट पर बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते गाड़ी ड्राइव करते हवेली के रास्ते पर डाली थी। पहले इसी रास्ते जाते इसका दिल धड़कता था। आज भी धड़क रहा था, मगर अजीब से खौफ से। जावियार खानजादा ने इससे सच में इसकी जान मांग ली थी, मगर मालिक भी बेरहम था, मलका भी बेरहम थी। वो जिमर खान की तरफ देखते मध्यम सा हंसा। वो सामने देख रही थी, मगर वो उसके चेहरे पर बेहद खुशी थी। वो जख्मी सा मुस्कुराते गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था। गाड़ी हवेली के गेट पर आकर रुकी थी। जिमर खान जल्दी से बाहर निकलने लगी, चेहरा ढांपी। वो विंडस्क्रीन पर निगाहें जमाए सर्द लहजे में बोला। जमर खान इसी लम्हे अपना चेहरा ढक गई थी। अल्तमिश दादा हॉर्न पर हाथ रख गया था। चौकीदार अंदर भागता हुआ आया। वो गेट के साथ एक तरफ छोटे से गर्म कमरे में मुकीम था। अंदर से ही अल्तमिश को देखते वो गेट खोल गया था। जमर खान गाड़ी से उतरते हुए अंदर की तरफ भाग गई थी। वह भाग रही थी। अल्तमिश खानजादा का दिल निकल रहा था। वो सीट के साथ सर टिकाए ऊंची हवेली पर अपनी निगाहें गाड़ गया था। पहली बार ऊंची शानदार हवेलियों में रहने वाले मुकीनों की से हसद महसूस हुआ था। वो थके थके से अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करते अपनी झोंपड़ी की तरफ गाड़ी मोड़ गया था, जो जैसा भी था इसके लिए कभी सुकून था। वो एक रात वहां बिताकर वो कच्चा मकान इसके लिए आग बना चुकी थी। लड़के से खानजादा के भारी कदमों का रुख अनेक्सी की तरफ था। वो अनेक्सी का भारी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अनेक्सी इस वक्त नींद तारीकी में डूबी हुई थी। वो मलाला खान के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो मलाला खान के कमरे में दाखिल हुआ तो मलाला खान कमरे के ठंडे फर्श पर ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। इसके सुनहरे बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे। वो स्याह रंग की बेहद फिटिंग फ्रॉक में मलबूस थी। इसका बेहद खूबसूरत जिस्म मुसलसल हिचकोले ले रहा था। कमरे में ना कोई इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा था, ना आतिशदान जल रहा था। लॉन की तरफ खुलने वाले दरवाजे के दोनों पट इस वक्त खुले थे। कमरे में बर्फीली हवाएं दाखिल होती कमरे को बर्फ से ज्यादा ठंडा बनाए हुए थी। पशिमाना खान के पास फ्लोर कुशन पर बैठी 2 गर्म जर्सियों पर टूटी शॉल ओढ़े भी सर्दी से ठिठर रही थी।
दरकज़ी खानज़ादा बर्फीली हवाएं खुद पर सहता ही यहाँ आया था, मगर फिर भी इसका अंग अंग कमरे में फैली फन की बर्फीस हुआ था। कमरा इस हद तक बर्फीला था, दरकज़ी खानज़ादा लॉन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ बढ़ते दरवाज़ा बंद कर गया था। जान से मार डालूंगी पशीमिना अगर दरवाज़ा बंद किया। मुझे ऐसे ही अपनी जान देनी है। खोलो दरवाज़ा। वो ऊँधे मुँह लेटी हंसियानी चीखी थी। दरकज़ी खानज़ादा इसके चीखने पर सर्द निगाहों से इसे देखे गया। पशीमाना ने परेशानी से मलाला खान को देखा। वो दरकज़ी खानज़ादा की आमद से अनजान थी। मर जाने दो मुझे, हो सकता है खान को मेरे मरने के बाद ही मेरी तकलीफ का एहसास हो सके। जो इसकी बेतनाई मुझे देती है इसे अंदाज़ा हो मैं जीती नहीं हूँ। मैं पल पल मरती हूँ, इसके इश्क में मरने दो मुझे। शायद मेरी खामोश लाश ही खान के दिल को दहला सके। मरने दो मुझे, शायद मेरी मौत ही खान के दिल में मेरे लिए कुछ पिघला सके। वो ऊँधे मुँह लेटी हिचकियों से अब रो रही थी। पशीमाना खड़े होते दरकज़ी को दबदबाए शिकवा की आंखों से देख रही थी। वो मुलाजमा कम, मलाला खान सहेली की सहेली ज्यादा थी। इसके हर गम, हर तन्हाई, हर की हमराज वो जब से अस्पताल से आई थी वही थी, जो मलाला खान परछाई बनी हुई थी। इसका शौहर इससे खफा था, मगर वह इतने दिनों से सिर्फ मलाला की वजह से ही अपने घर नहीं गई थी। नालिल्मा खानम से ने मलाला के कमरे का रुख किया था। दरकज़ी ने बहरमंद बहरमंद तो था ही, सुतेला जपने थे वो भी इसके वजूद से अनजान बने थे। वो दिन रात मलाला खान के साथ थी। आज के जरगे के फैसले के बाद मलाला खान ने आते ही अपनी बैंडेज उतार दी थी। मलाला खान ने शावर लेने के बाद से हैवी काम वाला फ्रॉक पहना था, जो इसके कयामत बदन पर बेहद जच रहा था। मगर फ्रॉक गले पर वर्क काफी हैवी था, जिससे सीने के जख्म से खून रिसने लगा था, मगर वह तब से खुद को अजियत दे रही थी। दरकज़ी खानज़ादा ने भारी कदमों से मलाला खान की तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठे इसे शाने से जकड़े सीधा किया था। वो दरकज़ी खानज़ादा को देखकर इसकी सब भीगी आसीत भरी मतोरम आंखें हैरत से फैली थी। पशिमाना ये ख्वाब है क्या खान मेरे पास है? वो दरकज़ी की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े बेकीनी से बोलती रो दी थी। मलाला बाजी खान ही है। पशीमाना ने जवाबन भीगे लहजे में कहा, दिल को जलाकर राख किया था, तब जाके ये राज राज खुला। इश्क वो आतिश है जो जलने के बाद ही समझ आता है। वो दरकज़ी खानज़ादा की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े टूटे लफ्जों से बोलते हिचकी लेते मुस्कुराई थी। दरकज़ी खानज़ादा बगौर से देखते झुकते हुए इसके कपकपाते लबों के करीब हुआ। दूसरे लम्हे वो पूरी कुव्वत से मलाला के कान को थप्पड़ से दाग गया था। थप्पड़ की गूंज बहुत शदीद थी। वो हिचकी लेते जमीन में समाई थी। पशीमाना ये देखते थर थर कांपने लगी थी। वो दरकज़ी खानज़ादा को इधर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। इसे खुद ही समझना चाहिए था। दरकज़ी खानज़ादा की फितरत को वो मलाला खान का शौहर था। अगर ये सब कुछ वो करती, इसका अपना मर्द इसकी जान निकाल कर रख देता। दरकज़ी खानज़ादा अपने मुंह पर गुस्से इश्तिहाल से हाथ फेरते कमरे के वस्त में चक्कर लगा रहा था। मलाला खान जमीन पर समाये हिचकियों से रो रही थी। खान साहब, इसमें मलाला बाजी का कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। इतना सर्दी में ये मर जाता, हमने दवाई समझकर इसको थोड़ा सा पिला दिया। दरकज़ी खानज़ादा की सरसक निगाह पशीमाना की चलती जुबान को ब्रेक लगी थी। खानम को नहीं पता था इस सब का बारे में। पशीमाना थर थर कांपते दरकज़ी खानज़ादा की सरसक निगाहों की हिद्दत से इसी लम्हे सच बता गई थी। तुम जाओ। दरकज़ी खानज़ादा ने बर्फीले लहजे में पशीमाना को जाने का हुक्म दिया। वो अपनी शाल से अपनी सुर्ख खुरदरे गाल रगड़ती चली गई थी। दरकज़ी खानज़ादा कमरे के दरवाजे का लॉक करते मलाला खान की तरफ बढ़ा, जो ठंडी जमीन पर ऊंधे मुंह लेटी हिचकियां भर रही थी। थप्पड़ जानदार था इसका, इस तरह हिचकियां भरना बनता था। दरकज़ी खानज़ादा के थप्पड़ पहले भी खा चुकी थी, इसलिए लाशऊरी तौर पर इसके थप्पड़ों का खौफ था, या फिर इसे जान से ज्यादा चाहती थी, इसे सब कुछ मानती थी, इसलिए इसे दरकज़ी खानज़ादा की मार दुत्कार तकलीफ देती थी। दरकज़ी खानज़ादा ने कमरे का इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करने के बाद कमरे के वस्त में बने आतिशदान की तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठे इसे जलाने लगा। कमरा यख सर्द था, इतनी जल्दी इलेक्ट्रिक हीटर काम न करता। वो आतिशदान दहकाने के बाद मलाला खान की तरफ बढ़ा, जो स्टिल ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। दरकज़ी ने इसे शाने से जकड़े सीधा किया। वो इसे देखते अपनी भीगी आंखें चिपकने लगी। इसके गुलाबी लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। उतर गया नशा या फिर मजीद उतारा? दरकज़ी इसे शानों से जकड़े इसकी सब आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े झंझोड़ क्या था। उतर गया है खान। मलाला खान कपकपाते लबों से बोलते अपने गाल पर हाथ रख गई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक औरत हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा निकाह में हो? वो इसे शानों से जकड़े घुर्रा रहा था। एक बार ही शर्म आई थी खान, जब निकाह के बाद गजीन के लिए तुम्हें धोखा दिया था। इस दिन दिल किया था, जमीन में समा जाओ। निकाह का मतलब समझ में आ गया था, समझ आ गया था। गजीन सिर्फ एक धोखा शराब था, जिसके पीछे भागते अपनी कम अकली की वजह से मैं मारी गई। इश्क तो वो है जो मुझे तुमसे कलाम की सड़क पर भागते हुए हुआ, जब मेरे पास कोई ठिकाना ना था। इन लम्हों में इश्क हुआ तुमसे, इतनी शिद्दत से इश्क हुआ कि अपना आप भूल गई। मैं कमजोर नहीं खान, मैं आज भी अपने इस गुनाह की सजा खुद को देती हूँ जो मुझसे हुआ। और उसकी आंखों में देखते दर्द कर्बजदा लहजे में बोल रही थी, इश्क का दावा करती हो?
औरत, जिस गलीज मशरूब को मैंने आज तक छूकर नहीं देखा, इस गलीज नापाक चीज को अपने हलक में उतार चुकी हूँ। तरकजी खानजादा से कहर आलूद निगाहों से घूरते घूर रहा है, जी कर रहा है तुम्हारे हलक में हाथ डालकर तुम्हारी जान ले लूं। उसे पूरी कुवत से गुस्से से जमीन पर ढकेल गया था। मलाला खान जमीन में समाते दरखेजी खानजादा के ख्वाब से पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। वो पीछे को खिसकती बेड के साथ जा लगी। कमरा तेजी से गर्म हो रहा था। दरखेजी खानजादा तैश आलम से कमरे के चक्कर लगा रहा था। इसकी रगों में दौड़ता खून बुरी तरह खौल रहा था। पहली मर्तबा इसने किसी औरत को गाली दी थी, वो भी अपनी ही औरत को। वह बुरी तरह झंझला रहा था, जी कर रहा था मलाला खान को इसी तरह छोड़कर चला जाए। एक तो वो नशे में थी, दूसरा इसके सीने का जख्म बुरी तरह खराब हो रहा था। गाँव गाँव गहरा था, खून रिस रहा था। वो चुप था मगर चेहरा बोल रहा था जैसे हर शरियान में आग दौड़ रही हो और जुबान पे रुक रुक कर हर जहर टपक रहा हो। उसे मुसलसल कहर बार निगाहों से घूर रहा था। खान, मैंने गम में बस। मलाला खान की ने दरखजी खानजादा को इतने गुस्से में देखकर रोते हुए वजाहत दी, बकवास बंद करो अपनी, औरत हो तुम। वो हलक के बल दहाड़ा था। मलाला खान इसकी दहाड़ पर लरसते हुए खामोशी से इसे भीगी आंखों से देखने लगी। मेरे नजदीक वो मर्द भी हराम और होता है मलाला, जिस गलीस मशरूब को मुंह लगाता है। तुम तो औरत हो, मेरे निकाह में हो। जितनी तकलीफ तुम्हारे भागने से हुई थी, आज भी इतनी तकलीफ हुई है। वो मलाला खान को भीगी आंखों से देखते बोला। दरखजी खानजादा की भीगी निगाहों पर मलाला खान फूट फूट कर रोती थी। क्यों किया तब भी और आज भी ये मलाला खान। वो उसकी तरफ बढ़ते पंजों के बल बैठते पूछने लगा। आज पहली बार दरखजी खानजादा ने इसे शिकवा किया था। ना समझती खान, माफ कर दो। वो दरखजी खानजादा के आगे दोनों हाथ जोड़े रोती थी। अपने गुनाह पर माफी के अलावा मेरे पास कोई लफ्ज नहीं। मैं तो वजाहत भी नहीं दे सकती, सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। खुदा की बनाई हुई हदूद को तुमने रोन दिया मलाला खान। वो हद जो औरत के लिए मुकद्दस तरीन थी, जिसे पार करना मजहब की इजाजत देता है, ना मुआशरा। तुम मेरे निकाह में थी, किसी और का ख्याल दिल में बसा लिया तुमने, मुझे रुसवा किया मलाला। सिर्फ बीवी नहीं, तुम मेरा मान थी, मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई एक इज्जत, जिसे तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुमने किसी दूसरे मर्द के लिए मुझे रुसवा किया मलाला खान, यकीन करो बहुत रुसवा किया। उसे देखते आहिस्तगी से बोल रहा था, आवाज में रोब नहीं, राख जैसी तकन थी। जब मैं जिरगे में बैठता हूँ, जब लोगों की आंखें जिरगे में मेरी तरफ उठती हैं, तो मेरी रूह कांपती है कि कोई तुम्हारा जिक्र न छेड़ दे, किसी की जुबान पर तुम्हारे नाम के साथ बेगैरती ना आ जाए। इस खौफ से मैं अपनी पिस्टल घुमाता हूँ, लोग डरें झुक जाएं और किसी को जुर्रात ना हो मेरे जख्म को छेड़ने की। जिस दिन ऐसा हुआ ना मलाला खान, इस दिन खून ही होगा हर जगह। मार दूंगा या मार दिया जाऊंगा। मलाला खान हाथ जोड़े रोती जा रही थी। कोई लफ्ज ही ना थे जो वो कहती, वो ठीक ही कह रहा था। मलाला, मैंने कहा, मेरे गले का फंदा बन गया है। खानम बी की दी कुरान की कसम, तुम्हारे आंसू सब ने मुझे बांध दिया। मैं तुम्हें रखे हुए भी गुनाहगार हूँ, तुम्हारे हक से नजर चुरा के भी। इस निकाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, न सुकून न इज्जत, बस रुसवाई, जिल्लत और हर दिन का तड़पता हुआ एहसास गुनाह। निर्गजी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी शिकस्त अपनी ही बीवी के सामने कबूल कर रहा था, वो इसी लम्हे वो मर्द नहीं लगा, सिर्फ एक जख्मी इंसान लगा जिसकी इज्जत मुकाबले की वजह से छिन चुकी थी। जिस औरत को तुम बगैरती का ताना समझते हो, वो हर रात खुदा से माफी मांगती है, लंबे लंबे सजदों में तुम्हारे लिए दुआ मांगती है, अपने रिश्ते से की दुआ मांगती है। मलाला खान रोते हुए दरखेसी खानजादा की गाल पर हाथ रख गई थी। खत्म हो गया सब मलाला, खुदा माफ कर सकता है, मैं नहीं। वो संजीदगी से बोलते खड़ा हो चुका था। क्यों खान, क्यों तुम माफ नहीं कर सकते? वो शिद्दत गिरिया से चीखी थी। क्योंकि मैं इंसान हूँ, वो भी जवाबन हलक के बल चीखा था। कमरे में खामोशी छाई थी। कमरे में सिर्फ आतिशदान जलती लकड़ियों की तड़तड़ाने की आवाज आ रही थी। कमरे की फिजा गर्म होती जा रही थी। मलाला खान का वजूद पसीने से तर होता जा रहा था। नशा अब इसके अंग अंग में उतर रहा था। वो आज गम की शिद्दत में जलते हुए बहरमन के कमरे से बोतल उठा लाई थी। इसे लगा वो मर जाएगी। अनाया के बिछड़ने के खौफ से दरखेज़े अपनी मूरे की जमीन लम्हों में दे गया था। वो इतनी शिद्दत से जल रही थी कि वो पूरी की पूरी बोतल को मुंह लगा गई थी। दरखेज़े की बातों पर वह बुरी तरह तड़प रही थी, बल्कि शर्म से जमीन में समा रही थी। पता नहीं क्यों उसे हर गुनाह का एहसास करने के बाद ही क्यों होता था। वो बुरी तरह तड़पते हुए पसीने से तर होते जमीन में आसमान समा रही थी। अंग अंग में दरखेज़े खानजादा की तलब समा रही थी, जिसकी कुर्बत पाने के लिए वह हर लम्हा तड़पती थी। दरखेज़े खानजादा से कहर बार निगाहों से घूरते दरवाजे की तरफ बढ़ा था। यकदम इसके कदम रुके थे। मलाला खान जमीन पर आड़ी तिरछी लेटी तड़प सी रही थी। वो जबड़े भींचे रुक गया। क्यों तड़प रही थी? वो पल में ही इसके बदन के नशीबों फराज पर किप से पर्दे खिसकते देखते समझ गया था। वो अपनी कमर की जिप खोले अपने फ्रॉक के कंधों से नीचे खिसका गई थी। नशा इसके वजूद में उतर रहा था। वो खुद को समेटते पागल हो रही थी। दरखेज़े का अंदाजा न चाहते हुए भी इसकी तरफ बढ़ने पर मजबूर हुआ। इस औरत का पर्दा रखना खुदा ने इस पर फर्ज किया था। इसे बेपर्दा वो किसी सूरत नहीं देख सकता था। दुनिया रसवा करे या कुछ भी, वो इसके निकाह में थी। जो रिश्ता खुदा ने बनाया था, वो इसे कैसे मुकर सकता था?
वो यूं तड़पता छोड़कर नहीं जा सकता था। दरकजी खानजादा के कदम जैसे किसी अनदेखी जंजीर से बंधे हुए थे। वो जानता था जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता जिस्म का नहीं, रिश्ते इस रिश्ते का है जो खुदा ने बांधा है। न चाहते हुए भी वो इस औरत की तरफ बढ़ा जिसे वो अपनी कमजोरी नहीं, अपने रब की अमानत समझता था। मलाला खान नाम नहीं, एक आजमाइश थी इसके लिए। अनाया आजमाइश नहीं, एक इनाम था इसके लिए। वो इनाम और आजमाइश में उलझ कर रह गया था। इसकी इज्जत, इसका पर्दा, इसकी चादर अब इसकी जिम्मेदारी थी। इसके मर्द होने से पहले इसके मुसलमान होने की शर्त थी। जो रिश्ता खुदा ने बनाया था वो इसे कैसे मुकर सकता था? वो इसे यूं तड़पता छोड़कर नहीं जा सकता था। कभी कभार पीठ मोड़ना बुजदिली नहीं, खुदा से रूह गर्दानी बन जाती है। और डरखसी खानजादा खुदा से नहीं मुकर सकता था। वो पंजों के बल बैठते मलाला खान के वजूद को खुद में समेट गया था। मलाला खान शिद्दत से इसके सीने से लगी थी। मुझे छोड़कर मत जाओ खान, खुदा की कसम, इस प्यासे वजूद को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। खुदा कसम, मेरे अंग अंग में सिर्फ तुम्हारी तलब है। खुदा कसम, तुम्हारे अलावा किसी मर्द को ख्याल में भी खुद के करीब नहीं आने दिया। वैसे इसके सीने में समाये इसकी चौड़ी कमर के गिर्द अपने हाथ कपकपाते लपेटते हुए थी। वैसे नरमी से गोद में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते से गोद से उतारते इलेक्ट्रिक गीजर ऑन कर गया था। मलाला खान इसके सीने से लिपटी कड़ी से एक आस भरी गुलाबी नम निगाहों से देख रही थी। जहां मुकाबिल की तलब शिद्दत से प्यास जगी थी, वो दरकजे का अंता था। गर्म पानी का लिवर घुमाते इसके नीचे खड़ा कर गया था। मलाला बुरी तरह झटपटाई थी। वैसे शानों से सख्ती से जकड़े दीवार के साथ लगाए हुए था। मलाला खान कंधों से उतरी फ्रॉक के साथ खड़ी भीगते हुए इसे नम निगाहों से देख रही थी। गर्म पानी दोनों को तेजी से भिगो रहा था। वो फूट फूट कर रोती दीवार में समाये आंखें मूंद गई थी। दरकजे खानदादा की गहरी निगाहें इसके सीने के घाव पर थी जो रिस रहा था। मुकाबिल एक जैसे एक जुनूनी औरत बन चुकी थी। दरगज़ी खानज़ादा इसके सीने के जख्म और इसके कयामत ख़ेज़ नशीबो फराज से निगाहें चुराते हुए इसकी शानों से हाथ हटा गया था। मलाला खान इसी लम्हे इसके सीने से शिद्दत से लिपटी थी। भीगा बदन तेरी हिद्दत को तरसे, इश्क में जल के भी तुझको छू ना सके। वो नशीली खुमार भरी आवाज़ में बोलती इसके साथ लिपटते इसके बेहद बेबाकी से छू रही थी। मलाला खान की एक टांग दरगज़ी खानज़ादा को छूने लगी। इसके हाथ दरगज़ी खानज़ादा की कमर पर बेताबी से सरक रहे थे। दरगज़ी की उंगलियां लम्हे भर को मुट्ठी में बंद हुई। दरकजी खानदादा ने इसे खुद से दूर करना चाहा। वो मजीद शिद्दत से लिपटते इसकी शर्ट को बैग से जकड़ गई थी। मत रुस्वा मत करो खान, मत गिराओ मुझे। औरत होने के मकाम से औरत औरत ही अच्छी लगती है। मत बनाओ मुझे खुद के लिए पत्थर। अपनी कुर्बत से मुझे महका दो। मुझे औरत होने का मकाम दे दो। मेरे मुझे मेरे गरूर की एक रात दे दो। वादा करती हूँ तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मलाला हौले से इसके सीने से लगते आंखें नीचे बड़बड़ाई थी। फिरकसी खानजादा का चेहरा पत्थर जैसा था। गर्म पानी की धार दोनों के वजूद को तर कर रही थी, मगर दरमियान की दीवार भी भीगी ना थी। अगर मेरा लम्स तुम्हें झुलसा दे तो मैं खुद को आग मान लूंगी। अगर तुम्हारी सांसें भड़क उठें तो मान लेना मेरा इश्क भी अब जिंदा है। वो इससे दूर होते, इसे बहके निगाहों से देखते मुस्कुराते हुए अपनी फ्रॉक जमीन पोस कर गई थी। फिर किसी खानजादा के खूबसूरत जिस्म से ज्यादा इसकी आंखों में उमड़ती तलब से निगाहें चुरा गया था। वो टाइट्स के ऊपर स्या बॉडी सूट पहने हुए थी जो इसके दिलकश बदन की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। फिर किसी खानजादा तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। मत जाओ खान। मलाला खान इसके पीछे लपकते इसके सीने को अपने दोनों हाथों से जकड़ गई थी। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं लगते, कुछ रिश्ते भी रस्ते हैं, और शायद हम दोनों अब तक खून आलूद हैं। तुम्हारे करीब आऊंगा तो झुलस जाओगे। ऐसी आग तुम्हारे लिए मेरे जिस्म में भड़कती है जिसमें सिर्फ तुम्हें जलाने का ख्वाहिशमंद हो। राख हो जाओगी। इसके हाथ अपने सीने से एक झटके से हटाते से सुनहरी मुट्ठियों में जकड़ गया था। दिन रात राख ही होती हो खान, तुम्हें किसी और के साथ देखकर आज तुम्हारी कुर्बत में हो जाऊंगी। मलाला खान की आंखों से आंसू निकलते आरिस पर बरसे थे। इसे धोखा नहीं दे सकता। दरकजी खानदादा सरनफी में हिला गया। मेरी तलब से निगाहें चुराओगे तो खुदा के अहकाम से नजर चुराओगे, चैन फिर भी नहीं आएगा तुम्हें। मलाला खान से खुद से दूर धकेलते हुए शावर के नीचे दो जानों बैठते दीवार से टेक लगा गई थी। आंखें मुंद गई। अब इसकी पुरसोस हिचकियां वॉशरूम में गूंज रही थी। दरकजी खानदादा कुछ देर खड़ा इसे देखता रहा, फिर आहिस्तगी से इसकी तरफ बढ़ा। झुकते हुए इसे नरमी से गोद में उठाया। मलाला खान इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े से भीगी निगाहों से देखने लगी। वो इसलिए कमरे में दाखिल हुआ। मलाला खान को बेड पर आहिस्तगी से लिटाया। इससे पहले वो इसके ऊपर से उठता, मलाला खान इसकी शर्ट को दोनों मुट्ठियों में जकड़े इसे अपनी तरफ खींचते, इसके लबों को अपने लबों में पेवस करते दरकजे की सांसों को पीने लगी थी। दरकजे खानदादा बेहद बेदर्दी से इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने लगा। मलाला खान इसके लबों पर दांत काट गई थी। दरकजे खानदादा के होंठ का खून मलाला खान के हलक में घुलने लगा था, मगर मलाला खान इसके लबों को छोड़ने को तैयार न थी। दरकजे खानदादा गहरे सांस लेते बेदर्दी से इसकी बेरहम गिरफ्त से खुद को छुड़वा गया था।
ملالہ خان سسک کر روتے تکیے پر اونھے منہ ہوئی تھی۔ درگزر خانزادہ اپنے زخمی لبوں کو انگلی سے چھونے لگا جہاں گہرا گڑھا سا بنا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے کمرے کی الماری کی طرف بڑھا، الماری سے کپڑے ملالہ کے لیے کپڑے نکالتے وہ ملالہ کی طرف بڑھتے، اس کے قریب بیٹھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے ڈالتے بٹھا کیا تھا۔ ملالہ خان اسے چکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے اب چکر آ رہے تھے، سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ درگزر خانزادہ اس کا باڈی شیپ اتارتے، اسے آرام دہ شرٹ پہنائی تھی، وہ اس کے بدن کے گیلے کپڑے ریموو کرتے اسے آرام دہ کپڑے پہنا کیا تھا۔ ملالہ خان اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرد ہو تم میں تم پر حلال ہوں، میرا حسن ایسا ہے جو کسی بھی مرد کو گناہ گار بنا دے، تم تو بھی گناہ گار بھی نہیں ہوگے، پھر بھی میری طلب نہیں جاگتی، مجھے چھونے کو دل نہیں کرتا، ملالہ خان نے کپکپاتے لہجے میں سوال کیا۔ درگزر خانزادہ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑواتے کمرے کی الماری کی طرف بڑھتے، فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کی طرف بڑھا۔ ملالہ خان تکیے پر سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی، سر بے انتہا دکھ رہا تھا، پتہ نہیں نشے کی وجہ سے تھا یا درگزر خانزادہ کی بے رخی کی وجہ سے تھا، مگر وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی تھی، وہ جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے اس کے سینے پر رستے گھاؤ کی مرہم پٹی کرنے لگا۔ مجھے تمہاری طرف تمہارا گناہ اور عنایہ کا چہرہ بڑھنے نہیں دیتا ملالہ خان، جس دن تمہارا گناہ مجھے چھوٹا لگا یا پھر مجھے عنایہ سے محبت نہ رہی تو تمہاری طرف شاید بڑھ جاؤں، مگر عنایہ سے محبت کم نہیں ہو سکتی، ختم کیا ہوگی؟ وہ اب مدھم سا ہنسا تھا۔ کب ہوئی اس سے اتنی شدت سے محبت؟ ملالہ خان بھی اب مدھم سا ہنسی تھی، زخمی ہنسی تھی، پتہ نہیں مگر ہو گئی۔ کم عمر تھی، لگا مجھ سے کبھی دغا نہیں کرے گی، اور سچی اور معصوم بھی تھی۔ وہ اس کی بینڈیج کرتے مدھم لہجے میں بول رہا تھا، پھر نہیں کیا کبھی دغا اسے؟ ملالہ خان نے روتے ہوئے سوال کیا تھا، جب سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تب سے تو نہیں کیا۔ اس کے گھاؤ پر اب مرہم لگا رہا تھا، ملالہ خان کو مزید گھاؤ رسنا محسوس ہوا تھا۔ کبھی دغا کرے گی تو کیا کرو گے تم؟ چھوڑ دو گے اسے جیسے مجھے چھوڑ دیا؟ ملالہ خان نے نرمی سے سوال داغا۔ وہ کبھی دغا نہیں کرے گی، لیکن مجھے اس پر کہیں کھڑا کر کے جاؤں گا تو صدیوں بعد واپس لوٹا تو وہیں کھڑی مجھے ملے گی، چاہے دھوپ سے اس کے پیر جھلس جائیں، کسی کا پیڑ کا وقتی طور پر سہارا بھی نہیں لے گی۔ وہ اس کی مرہم پٹی کرتے کھڑا ہو چکا تھا، جھک کر ملالہ خان کا کانپتا وجود کمبل پر دیا، وہ رخ پلٹ گئی تھی، لڑکے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ملالہ خان کی بھیگی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے، سمجھ آ گیا، خان انسان خدا نہیں ہوتا، وہ عورت کا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، مگر یقین کرو تو مجھے آگ میں بھی کھڑا کر کے جاؤ گے، جل کر راکھ ہو جاؤں گی، مگر رخ نہیں کروں گی۔ درخت سے کمرے کی تمام لائٹس آف کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آبلے پڑے پاؤں کے ساتھ اپنی حویلی میں داخل ہوا، ایک اور آبلہ پائی کا امتحان جیسے باقی تھا۔ عنایہ اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ مکمل بھیگا تھا۔ عنایہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف بڑھی، باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ درگزر خانزادہ جھوٹ بولتے اس کی کلائی پکڑے کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی کھڑکی سے باہر جھانک لے۔ عنایہ اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوتے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے کمرے کے تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ روشنی میں اس کے ہونٹوں کا زخم دیکھ سکے، وہ ڈرتا تھا، وہ شدت سے ڈرتا تھا، صرف اس عورت سے ڈرتا تھا۔ وہ اندھیرے میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، عنایہ کو شانوں سے جکڑے وہ بیڈ پر لٹاتے، اس پر کمبل اڑھاتے، اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ عنایہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے، سو جاؤ سین، وہ مدھم آواز میں بولتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایہ اپنی نم پیشانی کو انگلیوں سے رگڑ گئی تھی، پتہ نہیں پیشانی کیوں نم ہوئی تھی، مگر اس نے لائٹ لگا کر چیک نہیں کیا تھا، ابھی تو اس کا معصوم دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ تھا عالیشان مرد کی ناراضگی کا خوف، وہ اس مرد کی ناراضگی سے شدت سے خوف کھاتی تھی۔ وہ 5 منٹ بعد کپڑے بدلتے کمرے میں آتے، بیڈ پر لیٹے کروٹ لے چکا تھا۔ عنایہ اندھیرے میں اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی تھی، اس نے کمبل نہیں لیا تھا۔ درگزر اس کی پرسوس ہچکی گونجی تھی، بولو، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں شکوہ تھا یا نروٹھا پن، مگر وہ اسے بتا رہی تھی تاکہ وہ تڑپ جائے۔ سو جاؤ، صبح کھا لینا۔ وہ دل پر پتھر رکھتے سختی سے آنکھیں موند گیا تھا، وہ سچ میں اس عورت سے ڈرتا تھا، شدت سے ڈرتا تھا۔ درگزر کی انگلیاں اپنے ہونٹ کے زخم کو چھو گئی تھی۔ عنایہ اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے رخ پلٹ گئی تھی، نیند دونوں کی ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس بڑی سی حویلی کے چھت کے نیچے 3 وجود جاگتے ہوئے سسک رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، اور جو میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس پہ جانے تمنا اسٹارٹ ہوا ہے، تو اگر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی کے ناولس بھی ادھر میری وائس اوور میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے، تو آپ لوگ جائیں وہاں جا کر ریڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ عشق رومانچہ انشاءاللہ تھوڑے سے دنوں میں اسٹارٹ ہونے لگا ہے، پرمیشن مجھے مل گئی ہے رائٹر سے، تو عشق رومانچہ بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور جو ویلوتھا کے لیے پوچھ رہے ہیں، ویلوتھا کی ایپیسوڈ 15 ڈیز کے بعد آئے گی، تو جیسے وہ آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گی۔
اور رہی بات عنکبوت ناول کی، تو عنکبوت بھی جیسے ہی ایپیسوڈ آتی ہے میں فوراً بیٹھ جاتی ہوں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرنے، میں بھی 10 سے 15 دن میں وہ ایپیسوڈ آ جائے نیکسٹ، تو پھر انشاءاللہ میں کر دوں گی۔ لیکن جن جن لوگوں نے ریڈ کیا ہے نا ان کو مزہ بہت آیا ریڈ کرنے میں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا تو جائیں جا کے عنکبوت لازمی ریڈ کریں اور مجھے لازمی فیڈ بیک دیں گے۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔